নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিষ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এটা বিশেষ ভাষণ, তেখেতৰ এটা বিশেষ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত দেশত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে মন্ত্ৰী বিধায়কক বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য সেৱা দিয়া হয়, বিনামূলীয়াকৈ বিজুলী দিয়া হয়, আৰু সেই সময়ত সাধাৰণ লোকক যদি তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ বিজুলী দিয়ে তেতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহে সমালোচনা কৰে। কিন্তু কেজৰিৱালে আজি কৈছে তেওঁ এটা নতুন প্ৰতিজ্ঞা লৈছে যে মন্ত্ৰী বিধায়কে যি সুবিধা পায় সেই সুবিধা তেওঁ সাধাৰণ জনতাকো প্ৰদান কৰিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই বিশেষ খবৰটো, দেশত মন্ত্ৰীয়ে যি সুবিধা পায় সাধাৰণ জনতায়ো সেই সুবিধা লাভ কৰিব। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এয়া নতুন প্ৰতিজ্ঞা। তেওঁ কৈছে মন্ত্ৰীয়ে যি সুবিধা আপোনাৰো সেই একে সুবিধা, আৰু এই কথা কেজৰিৱালে বৰ্ণনা কৰি দিছে। দেশত মন্ত্ৰী বিধায়কে সকলো বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰে। জনতাৰ ধনেৰে, ৰাজকোষৰ ধনেৰে তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ সকলো সুবিধা দিয়া হয়, কিন্তু আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণ লোকক বিনামূলীয়া সুবিধা দিলে ৰাজনৈতিক দলৰ অসুবিধা হয়। মন্ত্ৰী বিধায়কৰ চিকিৎসা সেৱা বিনামূলীয়া, কিন্তু আপোনাৰ চিকিৎসা বিনামূলীয়া কৰিলেই ৰাজনৈতিক দলৰ অসুবিধা হয়। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি এই মন্তব্য কৰিছে। এজন মন্ত্ৰীৰ ৪,০০০ ইউনিটলৈকে বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হয়, কিন্তু সাধাৰণ জনতাক, দিল্লীৰ জনতাক ২০০ ইউনিট তেওঁ ফ্ৰী বিজুলী দিছে, বিনামূলীয়া বিজুলী দিছে, আৰু ইয়াক লৈ কেজৰিৱালক এতিয়া একাংশ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই সমালোচনা কৰিছে। তাৰ লগতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি কৈছে যে এই বিনামূলীয়া আঁচনিসমূহৰ টকা ক'ৰ পৰা আহে এই কথাও তেওঁ বৰ্ণনা কৰি দিছে। তেওঁ কৈছে আমাৰ দেশত যদি কোনো ব্যক্তি এবাৰৰ বাবে বিধায়ক হয় তেওঁ ১০-১৫ কোটি টকা তেখেতৰ বেংক বেলেঞ্চ হৈ যায়, ২-৪টা তেওঁলোকৰ অট্টালিকা হৈ যায়। কেৱল কিমানেই নহয়, এবাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হলে এই লোকসকলৰ ধন সম্পত্তি ইমানেই বাঢ়ে যে তেওঁলোকে ছুইচ বেংকত টকা পৰ্যন্ত জমা কৰে। এয়া হৈছে দেশত চলি থকা ব্যৱস্থাৰ কথা। এবাৰ বিধায়ক হলে ৭ পুৰুষে খাব পৰাকৈ এই মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে সুবিধা কৰি লয়, আৰু এই টকা তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা পায় সেই কথা কেজৰিৱালে কৈছে। চৰকাৰী ৰাজকোষৰ পৰা চুৰি হোৱা ধন তেওঁ কি কৰিলে, এই ধনসমূহ জনতাৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিলে। ইয়াৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী বিধায়কে ছুইচ বেংকত জমা থোৱা টকা তেওঁ সাধাৰণ লোকৰ জীৱন বীমা কৰাই দিলে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিলে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দুৰ্নীতিত যি ধন লাভ কৰে সেই ধন জনতাৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিয়া হ'ল। মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াক কৰা দুৰ্নীতি দিল্লীৰ চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিলে, আৰু তাৰ বাবেই দিল্লীৰ জনতাক বিনামূলীয়া বিজুলী দিবলৈ সক্ষম হৈছে, ভাল স্বাস্থ্য সেৱা দিবলৈ সক্ষম হৈছে, মহিলাসকলক বিনামূলীয়া বাছ সেৱা দিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াক লৈ কেজৰিৱালক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে মহিলাক বিনামূলীয়া বাছ সেৱা আপুনি ক'ৰ পৰা দিব, ইয়াৰ বাবে টকা ক'ৰ পৰা আহিলে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত তেওঁ কৈছে যে সেই সময়ৰ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ১৯০ কোটি টকা ব্যয় কৰি উৰাজাহাজ কিনিছিল, কিন্তু দিল্লীৰ মহিলাসকলক বিনামূলীয়া বাছ সেৱাৰ বাবে মাত্ৰ ১৫০ কোটি টকা দিল্লী চৰকাৰে ব্যয় কৰিলে, আৰু এই টকাৰ যিমান টকাত উৰাজাহাজ কিনিছিলে সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ বাবে তাতোতকৈ কম টকাৰে বিনামূলীয়া বাছ সেৱা দিল্লীৰ মহিলাৰ বাবে প্ৰদান কৰিলে। তেওঁ কৈছে চৰকাৰসমূহৰ ওচৰত টকা আছে, কিন্তু এই চৰকাৰসমূহে জনতাক মূৰ্খ বনাই থাকে। চৰকাৰে ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ ঘাটি বাজে, তেওঁলোকৰ টকা নাই, এয়া আচলতে আভুৱা ভাৰে। এই কামসমূহ জনতাৰ বাবে সেৱা কৰিবলৈ, জনতাক বিনামূলীয়াকৈ সুবিধা দিবলৈ, জনতাক মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সমানে সুবিধা দিবলৈ, ইয়াৰ বাবে প্ৰকৃত মনৰ প্ৰয়োজন হয়। চৰকাৰৰ মাজত বা চৰকাৰৰ হাতত টকাৰ অভাৱ নাই। দিল্লীৰ এক অনুষ্ঠানত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভাষণ প্ৰদান কৰিছে, আৰু এই মুহূৰ্তত দেশত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই ভাষণ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই ভাষণ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে শুনাৰো প্ৰয়োজন আছে, কিয়নো কেজৰিৱালে যিকেইটা দাবী কৰিছে যে মন্ত্ৰীয়ে যি সুবিধা পাব সাধাৰণ লোকে কিয় সেই সুবিধা নাপাব, মন্ত্ৰীয়ে যদি বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ পায় সাধাৰণ মানুহে কিয় বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ নাপাব, মন্ত্ৰী বিধায়কে যদি বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য সেৱা পায় সাধাৰণ লোকে কিয় স্বাস্থ্য সেৱা বিনামূলীয়াকৈ নাপাব। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকে এবাৰ বিধায়ক হলে দুৰ্নীতি কৰে, দুৰ্নীতি কৰি বেংক বেলেঞ্চ বঢ়ায়, তেওঁলোকে ছুইচ বেংকত টকা জমা থয়, তেওঁলোকৰ ৩-৪টা অট্টালিকা থাকে, সকলো কাম বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। এই দুৰ্নীতি বন্ধ কৰি দিলে, আৰু সেই দুৰ্নীতি বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত যিসমূহ টকা ৰাহি হ'ল এই টকা জনতাৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিয়া হ'ল। সেইবাবে দিল্লীত ২০০ ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলী দিব পাৰিছে, চিকিৎসা সেৱা উন্নত হৈছে, শিক্ষা খণ্ড উন্নত হৈছে, বিনামূলীয়া বাছ মহিলাক দিয়া হৈছে। আৰু তেওঁ নতুন প্ৰতিজ্ঞা লৈ কৈছে যে মন্ত্ৰী MLA যি সুবিধা পায় সেই সুবিধা সাধাৰণ জনতাকো দিব, আৰু কিদৰে দুৰ্নীতি বন্ধ কৰি এই সুবিধা সাধাৰণ জনতাক প্ৰদান কৰিছে এই কথাও তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। तो
बड़ा विरोध किया दूसरी पार्टी के लोगों ने कि आप ये फ्री भी दे रहे हो, लेकिन हम लोगों ने उनका कोई खैर मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता, वो चिल्लाते रहते हैं। एक ये फ्री भी जो इन्होंने शुरू कर दिया ना, फ्री भी दे रहे हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने ये मंत्री हैं, संतरी हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, यूनियन कैबिनेट वाले हैं, इनका सारा इलाज कौन देता है? इनका तो इलाज फ्री है, इनका इलाज फ्री है। और आप वकीलों को अगर फ्री इलाज दे दो तो कहेंगे फ्री भी। तुमको इलाज फ्री मिल रहा है तब तुमको तकलीफ नहीं होती, तुम फ्री इलाज ले सकते हो। हम अपने वकीलों को फ्री इलाज दे दे तो तुमको तकलीफ होती है। एक मंत्री जो है उसकी 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री होती है, उसको 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो कोई फ्री भी नहीं है। मैंने अगर अपने दिल्ली के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तो कहते हैं फ्री भी। भाई मैंने तो ठान ली, जो इस देश में मंत्रियों को मिलता है वो सारा देश के लोगों को दिलवा के रहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर कहते हैं पैसा कहां से आएगा, पहले ये मंत्री जितने, एक बार कोई एमएलए बन जाए इस देश के अंदर, उसका भाई साहब 10-15 करोड़ का तो बैलेंस हो जाता है, 2-4 बंगले हो जाते हैं, स्विस बैंक में अकाउंट हो जाता है और 7 पुश्तों का इंतजाम हो जाता है। वो सारा पैसा जो कि सरकार का चोरी होता था, वो पैसा हमने जनता में बांटना चालू कर दिया। जो पैसा स्विस बैंकों में जाता था उस पैसे से आपका लाइफ इंश्योरेंस करा दिया। 2-2, 3-3 फ्लैट खरीद लेते थे, गुड़गांव में, एक नोएडा में, हर जगह इनके एक फ्लैट होते थे मंत्रियों के, वो उसकी बजाय आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया, आपकी बिजली फ्री कर दी। पैसा वहां से आ रहा है, जो पैसा ये सारे मंत्री और ये सारे अफसर मिलकर लूटा करते थे, वो पैसे की लूट हम लोगों ने बंद कर दी उससे। और इतनी ज्यादा लूट थी मैं बता नहीं सकता। जैसा हमने हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, इन्होंने मेरा एक भाषण सुन रखा है, मैं आप लोगों की भी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार चुनाव के पहले हम लोगों ने दिल्ली की सारी महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया कि बसों का सफर फ्री। तो बोले पैसा कहां से आएगा? उसी टाइम बाई चांस गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए एक जहाज खरीदा था पर्सनल इस्तेमाल के लिए, 190 करोड़ का जहाज था, और दिल्ली की सारी महिलाओं का बस सफर फ्री करने के लिए 150 करोड़ रुपए लगे। मैंने कहा जितने में उसने जहाज खरीदा उससे कम पैसे में मैंने सारी महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। तो पैसा तो है, जनता को बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने, पैसा नहीं है। जब ज्यादा बात करो तो ये फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी और फलाना क्या पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। नियत चाहिए, बाकी कोई टेक्निकल बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर नियत साफ है, ऊपर वाला भी साथ देता है, और पैसा बहुत है, जब पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के अंदर। एक चीज मैं आप लोगों से मांगना चाहता हूं, वो ये कि आप लोग बहुत लोग मदद करते हैं कि अगर कोई भी गरीब आदमी आपके पास आए, उसके पास पैसे नहीं हो, उसकी मदद जरूर करना। और मदद आप करते हैं और मैं इसका बेनिफिशियरी हूं। ये मेरे को अरविंद केजरीवाल को इस देश के लोग पिछले 7-8 साल से जानने लगे हैं। उसके पहले तो मैं दिल्ली की सीमापुरी सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर काम किया करता था। पहले इनकम टैक्स में काम करता था, फिर इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी, एक एनजीओ बना ली, फिर एनजीओ बना के हम राइट टू इन्फॉर्मेशन और राशन के मुद्दे पे सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करते थे। तो वहां झुग्गियों में लोगों को ढेरों परेशानियां होती थी, तो लोगों को पकड़ पकड़ के मैं वकीलों के पास ले जाता था जब उनके काम होते थे। उस टाइम तो कोई मेरे को नहीं जानता था, मैं एक सामान्य साधारण सा आदमी था, लेकिन मेरे को कभी किसी वकील ने मना नहीं किया। सबने फ्री केसेस करे मेरे, चाहे वो बड़े वकील हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट का केस हो, चाहे हाई कोर्ट का केस हो, चाहे लोअर कोर्ट का केस हो, सारे वकीलों ने मेरे फ्री केसेस करे। मैं उन सभी वकीलों का शुक्रिया अदा करता हूं। तो बड़ा विरोध किया दूसरी पार्टी के लोगों ने कि आप ये फ्री भी दे रहे हो, लेकिन हम लोगों ने उनका कोई खैर मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता, वो चिल्लाते रहते हैं। एक ये फ्री भी जो इन्होंने शुरू कर दिया ना, फ्री भी दे रहे हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने ये मंत्री हैं, संतरी हैं, मुख्यमंत्री हैं,
कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, यूनियन कैबिनेट वाले हैं, इनका सारा इलाज कौन देता है? इनका तो इलाज फ्री है, इनका इलाज फ्री है। और आप वकीलों को अगर फ्री इलाज दे दो तो कहेंगे फ्री भी फ्री भी फ्री भी। तुमको इलाज फ्री मिल रहा है तब तुमको तकलीफ नहीं होती, तुम फ्री इलाज ले सकते हो। हम अपने वकीलों को फ्री इलाज देते तो तुमको तकलीफ होती है। एक एक मंत्री जो है उसकी 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री होती है। उसको 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो कोई फ्री भी नहीं है। मैंने अगर अपने दिल्ली के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तो कहते हैं फ्री भी फ्री भी फ्री भी फ्री भी। भाई मैंने तो ठान ली, जो इस देश में मंत्रियों को मिलता है वो सारा देश के लोगों को दिलवा के रहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर कहते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। पहले ये मंत्री जितने, एक बार कोई एमएलए बन जाए इस देश के अंदर, उसका भाई साहब 10-15 करोड़ का तो बैलेंस हो जाता है, 2-4 बंगले हो जाते हैं, स्विस बैंक में अकाउंट हो जाता है और 7 पुश्तों का इंतजाम हो जाता है। वो सारा पैसा जो कि सरकार का चोरी होता था, वो पैसा हमने जनता में बांटना चालू कर दिया। जो पैसा स्विस बैंकों में जाता था उस पैसे से आपका लाइफ इंश्योरेंस करा दिया। 2-2, 3-3 फ्लैट खरीद लेते थे, गुड़गांव में, एक नोएडा में, हर जगह इनके एक फ्लैट होते थे मंत्रियों के, वो उसकी बजाय आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया, आपकी बिजली फ्री कर दी। पैसा वहां से आ रहा है, जो पैसा ये सारे मंत्री और ये सारे अफसर मिलकर लूटा करते थे, वो पैसे की लूट हम लोगों ने बंद कर दी उससे। और इतनी ज्यादा लूट थी, इतनी ज्यादा लूट थी, मैं बता नहीं सकता। जैसा हमने हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, इन्होंने मेरा एक भाषण सुन रखा है। मैं आप लोगों की भी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार चुनाव के पहले हम लोगों ने दिल्ली की सारी महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया कि बसों का सफर फ्री। तो बोले पैसा कहां से आएगा। उसी टाइम बाई चांस गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए एक जहाज खरीदा था पर्सनल इस्तेमाल के लिए, 190 करोड़ का जहाज था। और दिल्ली की सारी महिलाओं का बस सफर फ्री करने के लिए 150 करोड़ रुपए लगे। मैंने कहा जितने में उसने जहाज खरीदा उससे कम पैसे में मैंने सारी महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। तो पैसा तो है, जनता को बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने, पैसा नहीं है पैसा नहीं है। जब ज्यादा बात करो तो फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी और फलाना क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। नियत चाहिए, बाकी कोई टेक्निकल बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर नियत साफ है ऊपर वाला भी साथ देता है, और पैसा बहुत है, जब पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के अंदर। एक चीज मैं आप लोगों से मांगना चाहता हूं, वो ये कि आप लोग बहुत लोग मदद करते हैं कि अगर कोई भी गरीब आदमी आपके पास आए, उसके पास पैसे नहीं हो, उसकी मदद जरूर करना। और मदद आप करते हैं और मैं इसका बेनिफिशियरी हूं। ये मेरे को अरविंद केजरीवाल को इस देश के लोग पिछले 7-8 साल से जानने लगे हैं। उसके पहले तो मैं दिल्ली की सीमापुरी सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर काम किया करता था। पहले इनकम टैक्स में काम करता था, फिर इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी, एक एनजीओ बना ली। फिर एनजीओ बना के हम राइट टू इन्फॉर्मेशन और राशन के मुद्दे पे सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करते थे। तो वहाँ झुग्गियों में लोगों को ढेरों परेशानियां होती थी, तो लोगों को पकड़ पकड़ के मैं वकीलों के पास ले जाता था जब उनके काम होते थे। उस टाइम तो कोई मेरे को नहीं जानता था, मैं एक सामान्य सा साधारण सा आदमी था, लेकिन मेरे को कभी किसी वकील ने मना नहीं किया। सबने फ्री केसेस करे मेरे, चाहे वो बड़े वकील हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट का केस हो, चाहे हाई कोर्ट का केस हो, चाहे लोअर कोर्ट का केस हो, सारे वकीलों ने मेरे फ्री केसेस करे। मैं उन सभी वकीलों का शुक्रिया अदा करता हूं।